Hello everyone. I, Mr. Vaibhav Titaramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in the subject Mechanical Engineering Material. Today we are going to study about molten cast iron, chilled cast iron and alloy cast iron. Let us review the previous lecture. In previous lecture we have discuss about the pig iron, that is the raw material for the manufacturing of steel and cast iron. The pig iron is produced and manufactured from the blast furnace. In previous lecture, we have also discussed about the wrought iron. That is, wrought iron is the purest form of iron which have very less impurities, and wrought iron is also called as high grade iron. We have discussed the various properties and applications of wrought iron in previous lecture. Let us discuss the learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to understand molten cast iron, its properties and its application. Understand chilled cast iron and alloy cast iron with its properties and applications. These are the program outcomes that we will achieve after completion of this lecture. Let us discuss the first, chilled cast iron. चिल कास्ट आयरन ये ऐसा कास्ट आयरन होता है जिसमें नाम है चिल्ड। इसको बहुत फास्ट, इसका जो कूलिंग रेट जो रहता है बहुत फास्ट रहता है, और जो कास्ट आयरन का जो आउटर सरफेस रहता है वहां पे हार्ड सरफेस बनता है। और इसको फास्ट कूलिंग करने के लिए हम उस मोल्ड कैविटी के बाहर चिल्स रखते हैं। चिल्स क्या करते हैं, उसके आउटर सरफेस को बहुत रैपिड कूल करते हैं, जिसके कारण चिल्ड कास्ट आयरन का ऊपरी जो सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, वह बहुत हार्ड बनता है। जैसे कि हमने व्हाइट कास्ट आयरन में कहा था, व्हाइट कास्ट आयरन रैपिड कूलिंग से बनता है, और अंदर का जो सरफेस रहता है वो स्लो कूल होता है, जैसे ग्रे कास्ट आयरन में होता है। तो देखिए यहाँ पे आउटर सरफेस पे हार्ड सरफेस, और जो कोर रहता है उसका जो गाभा है, उस गाभे में हमें कम हार्डनेस मिलती है। तो ये जो कास्ट आयरन है ये टफ कास्ट आयरन बनेगा। कैसा कास्ट आयरन बनेगा बेटा? टफ कास्ट आयरन। तो चलो देखते हैं। चिल्ड कास्ट आयरन castings are made by casting in molten metal against the metal chiller. मेटल चिलर मतलब जो चिल से जो हमने रखी है मोल्ड के बाजू में, रिजल्टिंग इन द सरफेस ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन, जिसके वजह से हमें ऊपरी जो सरफेस रहेगा वो हमें कौन सा मिलता है? व्हाइट कास्ट आयरन जैसा। दिस हार्ड abrasion resistant white iron surface or case is backup by softer gray iron core. देखिए इसका ऊपरी जो हिस्सा है वह हार्ड रहेगा, और अंदर का जो कोर है, अंदर का जो गाबा है वो कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। किसके जैसा? ग्रे कास्ट आयरन जैसा। किसके जैसा बेटा? ग्रे कास्ट आयरन जैसा। This case, core structure is obtained by careful control of overall alloy composition and adjustment of cooling rate. अगर हमें ये अच्छे से कोर को अगर अच्छे से हमें सॉफ्ट बनाना है तो हमें केयरफुल कंट्रोल लगेगा, है ना? हमें कौन सा कंट्रोल लगेगा? केयरफुल कंट्रोल लगेगा कूलिंग रेट का, बराबर। A chilled iron casting may be produced by adjusting the composition of iron so that the normal cooling rate at the surface is just fast, है ना? कूलिंग रेट जो है सरफेस के ऊपर का कैसा रहना चाहिए? फास्ट, टू प्रोड्यूस व्हाइट कास्ट आयरन, while the slower cooling rate below the surface will produce the mottled और ग्रे कास्ट आयरन, बराबर है। तो फास्ट कूलिंग रेट सरफेस के ऊपर होना और स्लो कूलिंग रेट कोर के अंदर होना, तभी हम चिल्ड कास्ट आयरन को बना सकते हैं। Let us discuss the influence of some alloy content on the properties and depth of the chilled cast iron. Okay, the depth of chill zone decrease and hardness of chill zone increase by carbon, silicon and manganese content. जैसे मैंगनीज और
सिलिकॉन और कार्बन को हम ऐड करते हैं तो हार्डनेस बढ़ती है। फास्फोरस विच कैन बी डिक्रीज द डेप्थ ऑफ चिल। ध्यान से देखना है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस से क्या होगा, डेप्थ ऑफ चिल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। विथ कार्बन एंड सिलिकॉन कांस्टेंट एंड इंक्रीज ऑफ 0.1%। अगर हमने कार्बन और सिलिकॉन को कांस्टेंट रखा तो डेप्थ ऑफ चिल 0.1% से बढ़ जाएगा। Phosphorus will decrease the depth of chill about 0.1 inch। Phosphorus से depth of chill decrease हो जाएगा। Nickel which can reduces the chill depth and it influence it about 1/4 of the silicon। Nickel जो है depth of chill कम कर देगा। Copper in addition of less than 4% decreases the depth of chill। कॉपर क्या करेगा, 4% से अगर कम रहेगा डेप्थ ऑफ चिल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। बट इन एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट डेप्थ ऑफ चिल एंड हार्डनेस इंक्रीज। तो 4% से अगर कम रहा तो डेप्थ ऑफ चिल को कम कर देगा, 4% से ज्यादा रहा तो ये हार्डनेस और डेप्थ ऑफ चिल। 4% से ज्यादा अगर हम कॉपर डालते हैं तो वह चिल डेप्थ को बढ़ा देगा। अभी हम चिल्ड कास्ट आयरन के बारे में देखते हैं। A constant chill depth may be obtained by using a combination of alloying element that have the opposite effect। अगर हमें constant chill depth अगर अचीव करना है तो हमको alloying element के combination को यूज करना पड़ेगा ताकि उनका इफेक्ट जो है अपोजिट आना चाहिए। Since nickel reduces the chill depth, निकेल क्या करता है, चिल डेप्थ को रिड्यूस करता है। It is common practice to add chromium to produce the opposite effect। देखिए, अगर निकेल रिड्यूस करता है चिल डेप्थ को तो हम क्रोमियम को ऐड करेंगे जो अपोजिट इफेक्ट करेगा। अभी अपोजिट इफेक्ट मतलब निकेल कम करता है तो क्रोमियम बढ़ाता है। द नॉर्मल रेशियो एम्प्लॉयड इन दिस पर्पज इज 3 पार्ट ऑफ निकेल टू 1 पार्ट ऑफ क्रोमियम। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 पार्ट अगर हमने निकेल के लिए तो हमको 1 पार्ट क्रोमियम का लेना पड़ेगा, तभी हम कांस्टेंट चिल डेप्थ मतलब कितने लेवल तक हमें हार्डनेस को लेके जाना है तभी हम अचीव कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे सभी लोग, ये जो ऊपरी सरफेस है, ये जो ऊपरी सरफेस है ना, यहाँ पे हमें व्हाइट कास्ट आयरन मिलेगा जो कि बहुत हार्ड रहेगा। और ये जो इधर वाला जो पोर्शन इसको हम कोर बोलेंगे, यहाँ पे हमें ग्रे कास्ट आयरन मिलेगा जो कि सॉफ्ट रहेगा। बराबर है। तो ऊपरी सरफेस को हम फास्ट कूल करेंगे और जो ये अंदर का जो सरफेस है, कोर वाला जो सरफेस है वो थोड़ा स्लो कूल करेंगे। तो इससे जो हमें कास्ट आयरन मिलता है उस कास्ट आयरन को हम क्या बोलते हैं, चील्ड कास्ट आयरन। बराबर है। अभी हम अलॉय कास्ट आयरन के बारे में देखते हैं। देखिए, अलॉय कास्ट आयरन मतलब क्या, ऐसा कास्ट आयरन जिसमें हम अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज हम बढ़ा सके, इंप्रूव कर सके। इसलिए द कास्ट आयरन इज सपोज टू बी वेरी हार्ड, brittle, lacking in tensile and transverse strength, and weak to withstand shock, is alloyed with other metal to improve its property। हमें वेरी हार्ड अलॉय कास्ट आयरन होना। अगर कुछ कास्ट आयरन वीक रहते हैं, वह शॉक्स को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ रहते हैं, तो हमें उन कास्ट आयरन में अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ता है। उस कास्ट आयरन को हम अलॉय कास्ट आयरन कहते हैं। लेट अस डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ अलॉय कास्ट आयरन। अलॉय कास्ट आयरन falls into two groups। पहला, those that contain graphite, and second, that don't, and both are designated white iron। हम अलॉय कास्ट आयरन को दो प्रकार में बांटते हैं, जिसमें ग्राफाइट रहता है या जिसमें ग्राफाइट नहीं रहता है। उन दोनों को भी हम व्हाइट आयरन बोलते हैं। दी हाई निकेल हीट रेजिस्टेंट कास्ट आयरन, जिसको हम एनआई रेजिस्ट बोलते हैं, हाउएवर आर रिलेटिवली इजी टू कास्ट। तो हाई निकेल जो अलॉय कास्ट आयरन रहते हैं वह
इजी टू कास्ट रहते हैं, इजीली उनकी कास्टिंग्स बनती है, एंड सर्टेनली मच इजियर टू कास्ट देन द इक्विवेलेंट हीट रेजिस्टेंस स्टील अलॉय। बाकी के जो अलॉय है उससे ये इजीली कास्ट होता है। कौन सा? हाई निकेल, या उसका दूसरा नाम क्या है? Ni resist. Okay, let us discuss the properties of alloy cast iron. High operating temperature, आउटस्टैंडिंग कोरोजन रेजिस्टेंस, इसका कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब इसको जंग नहीं लगता है, लाइट वेटेड रहते हैं, हल्के रहते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वेरी गुड और हार्डनेस भी अच्छी रहती है, गुड स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, एक्सलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, good finishing characteristics. So these are the properties of alloy cast iron. Let us discuss the applications or uses of alloy cast iron. Alloy cast iron is used for making pipes to carry suitable fluids. It is also used in making different machines. It is used in making automobile parts. It is used in making pots, pan and utensils. It is also used in making anchors for ships. So these are the special applications of alloy cast iron. Let us discuss the next cast iron, that is mortal cast iron. Cast iron or pig iron, that is the intermediate between white cast iron and grey cast iron. व्हाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन के बीच में का जो आयरन रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोटल्ड कास्ट आयरन बोलते हैं। Iron which consists of mixture of variable proportion of grey cast iron and white cast iron, such material has a mottled fracture. बराबर है? व्हाइट और ग्रे के बीच में का जो कास्ट आयरन है, that is called as a mottled cast iron. Let us discuss the composition of mottled cast iron. It has combined carbon of 1.75%, graphite of 1.75%, iron of 93.5%. The remainders are the impurities, right? Let us discuss the properties of mottled cast iron. Mixture of two stages, that is grey cast iron and white cast iron. हमको पता ही है ये grey cast iron और white cast iron के बीच का है. Strength and hardness varies according to the ratio of free carbon to the combined carbon. इसके जो hardness और strength है वो कितना कार्बन फ्री कार्बन है और कितना कंबाइंड कार्बन है इसके ऊपर डिपेंड रहती है. Less tendency to rust than grey cast iron into ग्रे कास्ट आयरन वेराइटी, मतलब इसको जो रस्टिंग मतलब कोरोजन जो होता है ये ग्रे कास्ट आयरन से कम होता है. इसको जो फ्लूइडिटी है वो अच्छी है, इसलिए कास्टिंग बनाने में बहुत इजी जाता है. ये हार्ड है, ब्रिटल. लेट अस डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ मोटल्ड कास्ट आयरन. द ओनली यूज ऑफ मोटल कास्ट आयरन इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनहोल कवर्स एंड पाइप्स. जो गडर के जो ऊपर का जो कवर रहता है, उसका जो ढक्कन रहता है, उनको बनाने के लिए या पाइप्स बनाने के लिए मोटल कास्ट आयरन का यूज होता है. ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि मैनहोल कवर्स बनाने के लिए कौन से कास्ट आयरन का यूज होता है, तो मोटल कास्ट आयरन का, ये आपने ध्यान में रखना है. So we have achieved, these are the unit outcomes. Select the relevant cast iron for the given job and identify the properties and given composition of cast iron with a justification. Let us revise the today's lecture. We have discussed about the chilled cast iron. Chilled cast iron means the outer surface is of white cast iron and the core is of the grey cast iron. Mortal cast iron we have discussed, and also discussed the alloy cast iron. So these are the program outcomes that we have achieved by this lecture. So these are the most likely questions that are asked in MSBT. That is, explain chilled cast iron, write the properties and application of mortal cast iron, write the properties and application of alloy cast iron, right? Thank you very much, guys.
अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आपने कांटेक्ट करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम नॉन फेरस मेटल और अलॉय, ये जो हमारा 4th नंबर का चैप्टर है, हम शुरू करने जा रहे हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।